Well, as India's most populous state, Uttar Pradesh, the humble bulldozer has come to occupy a very prominent place. Right from being a tool of development, it has now, over the last few years, taken up the role of an instrument of law enforcement. And as a result of this, it has also been credited for contributing to Yogi Adityanath returning to power in 2022 state elections, with the Chief Minister occasionally being also referred to as Bulldozer Baba. Now it appears that Yogi's main rival, Akhilesh Yadav, who also wishes to ride on that victory till the next elections that happen in the 2027 year, on the driving seat of a bulldozer. As per the Samajwadi Party, Akhilesh Yadav says that once if the party wins the 2027 UP elections, all of the bulldozers of the state will be straight heading to Gorakhpur. Gorakhpur is, of course, when it comes to the hometown of Yogi Adityanath and the location of the sacred Gorakhnath Mutt, where Yogi Adityanath is the Mahant. Now, Yogi Adityanath taking no time to respond to this threat made by Akhilesh Yadav. Here's what he said. 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो, वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। Well, let's decode Yogi Adityanath's response. His remark on Tipu wanting to become Sultan is a direct reference to one of Akhilesh Yadav's pet name, that is Tipu. Aside from that, he cites Mungeri Lal ke Haseen Sapne, which is essentially telling Akhilesh Yadav to not to dream on continuously, as far as he believes that this will never come true. And he also says to roll out bulldozers, one needs dil and dimag, with the implication being that it is beyond Samajwadi Party's ability to even run a bulldozer. Let's also listen into what the BJP is also saying and implying as far as what does Yogi Adityanath mean in his statement. अखिलेश यादव हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं। दुख है, परेशानी है कि जो मजा लिया करते थे शासन का, जहां मर्जी नाचने वालों को नचा दिया करते थे, विकास का कोई काम नहीं था, कुछ वर्गों का तुष्टीकरण था। आज वो खींच जो उनके दिमाग पे चढ़ गई है, जिसको दिमागिया बुखार कहते हैं, ये उसका ही नतीजा है कि उल्टी सीधे बयानबाजी करना। अखिलेश यादव की आदत हो गई है हिंदुओं का अपमान करने की, और उनकी पार्टी की प्रवृत्ति गुंडागर्दी की है। ये कहना कि बुलडोजर गोरखपुर की तरफ जाएगा, गोरखपुर गोरखनाथ पीठ की धरती है, वहां पे लाखों हिंदू श्रद्धालु हमेशा पूजा करते हैं। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव? इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, गरीबों को धमकाती है, गुंडों की पार्टी है, और हिंदू सभ्यता का अपमान करना समाजवादी पार्टी की वोट बैंक की प्रवृत्ति है। समाजवादी पार्टी के नवाबजादे अखिलेश यादव जी का कहना है कि 2027 में हमारी सरकार बनते ही गोरखपुर की ओर बुलडोजर चलेंगे। मतलब कि अब दिन दहाड़े सपने भी देख रहे हैं और सत्ता में आने से पहले ही लोगों को धमकियां देना, हिंदू समाज को चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। आज तो सनातन के केंद्र पर भी बुलडोजर चलाने की बात समाजवादी पार्टी वोट बैंक की राजनीति से ग्रसित होते हुए कर रही है। परंतु जब गुंडों पर, माफियाओं की संपत्ति पर ये बुलडोजर चलता है, तभी हम मातम मनाते हैं। Well, Adib is with us. Adib, good afternoon. This is the bulldozer Rajniti that seems to be now taking center stage, where BJP is also branding Samajwadi Party as the party of goons. And in a way suggesting that dil aur dimag dono chahiye when it comes to also using a bulldozer, and saying that the Samajwadi Party is not capable enough.
Well, definitely, Amita sees Chief Minister Yogi Adityanath has launched a scathing attack on Akhilesh Yadav, Samajwadi Party chief. CM Yogi Adityanath is saying that one needs a heart and mind to use the bulldozer, and he should know when and where to use it. This is the direct response from Chief Minister Yogi Adityanath, which is coming at Akhilesh Yadav. Akhilesh Yadav, while he was talking to his party workers in the Samajwadi Party office on Tuesday, said that once the Samajwadi Party comes in power, all the bulldozers will be heading towards Gorakhpur. And in fact, not just Akhilesh Yadav now, since morning, the Samajwadi Party spokesperson are saying that there are multiple illegal structures in Gorakhpur, and once we come into power, our bulldozers will be heading towards Gorakhpur. This is what the Samajwadi Party is saying. But the Chief Minister's response, the direct Chief Minister is saying that one needs a heart and mind, and Akhilesh Yadav, he's daydreaming. The Chief Minister was saying that Akhilesh Yadav, without taking his name, Chief Minister was saying that a person who aspires to be a sultan is daydreaming and is talking about like a Mungri Lal ke Haseen Sapne. But in fact, the reality is different. The Chief Minister has hit out at Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, saying that one needs heart and mind to use the bulldozer, and only and not everyone's hand can fit on the bulldozers. So this is the jibe that the Chief Minister Yogi Adityanath has. We also talk about as far as the context in which such kind of statements that have been made. Pramod Krishnan ji is with us right here. Sir, क्या आप समझना चाहेंगे या किस तरह से आप समझेंगे as far as योगी आदित्यनाथ टिप्पणी is concerned? क्योंकि अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 2027 में अगर उनकी सरकार बनी तो सारे जितने बुलडोजर है वो गोरखपुर की तरफ जाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी अपने आप को तैमूर लंका लश्कर समझती है। नादिर शाह, बाबर उनका लश्कर समझती है, और वो समझती है कि वो जहां जाएगी वहां बवाल मचा देगी, बर्बाद कर देगी। मठ मंदिरों को ध्वस्त करना इनका पुराना शौक रहा है। महमूद गजनबी हो या बाबर हो या मीर बाकी हो, जो भी आया उसने मठ मंदिरों का निशाना बनाया। उन्होंने हर जगह उत्पात मचाया। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा, संभल में हर मंदिर तोड़ा, और पानीपत में मंदिर तोड़ तोड़ के सब जगह उन्होंने उत्पात मचाया। तो अखिलेश यादव भी उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। ये घोर निंदनीय है। मुख्यमंत्री के पद पर रहे अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हें ये बातें शोभा नहीं देती। आखिर वो गोरखपुर पर हमला करना चाहते हैं क्या? वो गोरखपुर पर गोरखपुर मंदिर, गोरखपीठ जो है उसको तहस नहस करना चाहते हैं। सारे बुलडोजरों का मुंह गोरखपुर की तरफ होगा। इसका कहने का मतलब क्या है? क्या वो गोरख पीठ को बुलडोज करना चाहते हैं? क्या वो गोरख पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बदला लेना चाहते हैं? किस बात का? तो ये अखिलेश यादव जी का जो बयान है, ये एक तो घोर निंदा के काबिल है, निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं क्षमा याचना करनी चाहिए। आचार्य जी, एक और चीज है, अगर आप थोड़ी देर रुके, मैं आपको सुना देती हूँ कि आखिरकार कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर गोरखनाथ या गोरखनाथ मठ के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। उनकी तरफ से भी हम ये जो रिएक्शन है एक बार सुन लेते हैं। मठ में बड़ा कुछ अवैध हो गया है, वो तो जनता की भावनाओं के साथ खेला गया है। मंदिर होता है लोगों की आस्था के लिए, मंदिर का राजनीतिकरण कर दिया, वहां भ्रष्टाचार कर दिया। उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार का पैसा मठ में जा रहा है, और अवैध निर्माण तो हो ही रहा है। तमाम अपनी मठ का पैसा ले लिया। मठ कहीं कभी सरकार से कोई पैसा लेता है क्या? अगर 4 अवैध तरीके से टूट भी गया था या उसको चौड़ीकरण सड़क के नाम पे, मठ को तो थोड़ी नहीं सरकार से पैसा लेना चाहिए। आपने पैसा लिया है, और इस तरह के बहुत सारे कारनामे जो अभी नहीं खोलेंगे, आने वाले समय में खुलेंगे। आचार्य जी, आपने सुना, कह रहे मठ में भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, तो इसका मतलब साफ है, जो मैं बोल रहा था, उनका निशाना गोरख मठ है। देखिए, अखिलेश यादव जी वो नेता हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने ही हमारे कल्की धाम के निर्माण पर भी पाबंदी लगाई थी। अखिलेश यादव वो हैं, उस पार्टी से आते हैं जिन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलाई। अखिलेश यादव जी को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है योगी आदित्यनाथ जी से, और बीजेपी का कोई और मुख्यमंत्री होता तो शायद वो इतने परेशान नहीं होते, क्योंकि वो एक साधु हैं, एक योगी हैं। और समाजवादी पार्टी भगवा से, संतों से, मंदिर से, मठ से, इनसे चिढ़ती है, क्योंकि राहुल गांधी जी की संगत में आ गए हैं। राहुल गांधी जी की संगत में जो रहेगा वो मठ मंदिरों को बुलडोज करने का सपना देख
देखेगा। लेकिन ये भारत है, यहाँ महमूद गजनवी, नादिर शाह और तैमूर लंग जैसे लोग आए, बाबर आए और चले गए, लेकिन भारत भारत रहा है, आज भी भारत है। राम मंदिर को रोकने का कितना प्रयास किया, लेकिन राम मंदिर आज बन करके अपनी भव्यता को उपलब्ध हुआ। श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई अखिलेश यादव जी ने, लेकिन श्री कल्की धाम का शिलान्यास 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ। किसी को नहीं रोक पाएंगे, ये गोरखपुर का बाल बांका नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनकी जो धमकी है ये तैमूर लंग जैसी धमकी है, इनकी जो धमकी है वो नादिर शाह जैसी धमकी है, इनकी जो भाषा है वो बाबर जैसी भाषा है। इस भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। और मुख्यमंत्री तरफ से ये कहा जा रहा है कि सब में उतनी काबिलियत है नहीं कि बुलडोजर चला सके, उसके लिए नियत, उसके लिए दिमाग, उसके लिए दिल चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान दिया है वो मैं उसका समर्थन करता हूं कि सख्त फैसला लेने के लिए सख्त घटना जरूरी है। जिसके हृदय में सच होगा वही सख्त फैसला लेता है। और बुलडोजर किस पे चल रहा है? अपराधियों पे। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो बलात्कार कर रहे हैं, क्या इनको माफ कर दिया जाए? क्या इन्हें क्षमा याचना दे दी जाए? जो 10-10 साल, 12-12 साल, 14 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं और बीभत्स कृत्य कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, क्या इन्हें माफ कर दिया जाए? तो योगी आदित्यनाथ जो जुल्म कर रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, उसका समर्थन होना चाहिए। जी, धन्यवाद आपका आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। As far as Acharya Pramod Krishnan, there of course taking on Akhilesh Yadav and condemning the statement that is coming out of him, but even when it comes to Adib, now this is an angle which is now been attached as a context to why they are saying that the JCBs now will be facing Gorakh, even when it comes to the Mutt, suggesting that there is a possibility of scams and corruption that may have taken place. Well, see, Amita, these are the allegations that are being leveled up by Samajwadi Party. They are saying that when we're going to come in power, with all the proper documentation, our bulldozers will be rolling towards Gorakhpur city, and not just Gorakhpur. They are talking specifically about Gorakhnath Mutt. This is the Mutt from where Chief Minister Yogi Adityanath comes. This is the Mutt from where the CM Yogi Adityanath is also the head of that particular Mutt. And now the Samajwadi Party is now alleging and raising allegations on that particular Mutt that when we'll come into power, our bulldozers will be standing outside the Gorakhnath Mutt. So this is a direct attack on the Bharatiya Janata Party, on the Gorakhpur city by the Samajwadi Party spokesperson. And so not everybody's hands can fit on a bulldozer, as far as the statement that came in from the UP Chief Minister Yogi Adityanath in terms to a statement being